Hello everyone, welcome to my channel. In this video we are going to discuss Simpson's one-third rule, and this we use mainly for numerical integration. तो अगर कोई function ऐसा है that I cannot integrate normally by using the normal techniques, और in that cases जो कि real life problems होता है उसमें we get this kind of things, जिसमें we have to use numerical integration to solve those kind of integration, जिसमें the functions is very we can say डिफिकल्ट, थोड़ा सा उसमें सब कुछ अगर हो लाइक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इज देयर, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, अलजेब्राइक, सब कुछ मिला के एक थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन इज देयर एंड वी हैव टू इंटीग्रेट इट. सो इन दैट केस वी यूज दिस रूल्स लाइक ट्रापेजॉइडल इज देयर, सिम्पसन्स वन थर्ड इज देयर, वेडल्स रूल इज देयर. सो है, और इनमें से सिर्फ और सिर्फ ट्रापेजॉइडल एंड सिम्पसन्स वन थर्ड वी हैव इन आवर सिलेबस. सो ट्रापेजॉइडल इज ऑलरेडी कवर्ड इन द लास्ट वीडियो, सो नाउ वी आर डूइंग सिम्पसन्स वन थर्ड. मैं इसमें थोड़ा सा सिम्पसन वन थर्ड कहाँ से आया ये भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ, लाइक द फॉर्मूला दैट वी हैव गॉट. तो एक फॉर्मूला है दैट इज नोन एज जनरल क्वाड्रेचर फॉर्मूला, ऑल्सो नोन एज न्यूटन्स कोट फॉर्मूला. ठीक है, मैं नाम लिख देता हूँ यहाँ पे, जनरल quadrature formula. So how do we get this formula? Actually, let me show you. I can write like this ki I equals to some x0 to xn fx dx is equals to x0 to xn in third bracket y0 plus u forward difference operator y0 plus u into u minus 1, है ना. You are getting this formula, Newton's forward difference formula, by 2 factorial, second order forward difference operator and so on. फिर उसके बाद जैसे dx था मैंने लिख लिया. सो मैंने क्या किया यहाँ पे, fx को I have written by using the Lagrange by using the Newton's forward difference formula. न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस में हम लोग एक फंक्शन को पॉलिनोमियल से अप्रॉक्सीमेट करते हैं, और वही पॉलिनोमियल का जो फॉर्मूला है दैट आई हैव रिटन हियर, सिंपल. ओके, नाउ आई कैन रीअरेंज दिस फॉर्मूला थोड़ा बहुत, एंड इफ आई डू सो आई विल गेट, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ इसको रीअरेंज करके, वी कैन राइट लाइक दिस, n इंटू एच इन थर्ड ब्रैकेट इट विल बी y0 प्लस y0 plus n by 2 forward difference operator y0 plus n into 2n minus 3 by 12 and so on. Okay, third bracket close. और यहाँ पे हो क्या रहा है कि since we can write since x equals to x0 plus u into h, this I am writing from just basic concept of the increment of x, or like from forward difference Newton's forward difference operation or forward difference operator, I am writing all these things. तो और यहाँ पे I can write dx is equals to h into du, है ना. like if I have, sorry यहाँ पे x होगा, this is not. so if I have this, like just simple substitution method और कुछ नहीं, है ना. तो इससे I can write by differentiating both side, I can write x equals to h into du, क्योंकि x0 जो है वो तो कांस्टेंट है, डेरिवेटिव करने से 0 हो जाएगा. सो आई विल गेट dx equals to h du सिंपली. ओके, तो मैंने क्या किया यहाँ पे, आई हैव कन्वर्टेड dx into du in form of du, and I'll get this. Okay, so this is the main quadrature formula or the generalized quadrature formula that we need to know, यही है. और इसी में now इसमें कुछ थोड़ा बहुत implication करने से we'll get trapezoidal, we'll get Simpson's one third etc. right. तो मान लीजिए कि अब इससे जो ऐसे trapezoidal कैसे मिलता है, if I take n equals to 1 here, if I take n equals to 1 in this formula, I'll get trapezoidal, right, जो कि ऑलरेडी मेरा डिस्कस्ड है इन द लास्ट वीडियो, है ना. n equals to 1 पुट करने से दिस विल बिकम, मैं लिख देता हूँ, i equals to x0 to x1 fx dx is equals to h into y0 plus half forward difference operator y0, सिंपल. अब ये क्या है, h into y0 into, अब if I apply the definition of forward difference operator, I will get y1 minus y0,
So if you simplify this, see, you will get the formula of trapezoidal rule. H by 2 y0 plus y1, simple. And this is for like 2 points only for x0 x1. And if I keep on like, ये तो मिल गया. अब सोचिए मैं नेक्स्ट इंटरवल में जा रहा हूँ, दैट इज फॉर x1 to x2 fx dx. तो उसके लिए मुझे मिल जाएगा h2 इंटू y1 प्लस y2, राइट. यहाँ पे अगर इंटरवल चेंज करूंगा तो अकॉर्डिंगली फॉर x2 to x3 है ना, आई विल गेट h by 2 y2 प्लस y3. अब इसको n तक लिखना है, दैट इज xn minus 1 to xn, है ना. तो ये क्या हो जाएगा, h by 2 yn minus 1 प्लस yn. अब अगर सभी को आप लोग ऐड कर दे, इफ यू ऐड ऑल दिस थिंग्स विल गेट लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम x0 to xn, तो आपको पूरा इंटरवल मिल चुका है fx dx, राइट, इक्वल्स टू, यहाँ पे h by 2 कॉमन चला जाएगा, एंड इफ यू सिंप्लीफाई यू विल गेट द फॉर्मूला ऑफ trapezoidal rule, composite trapezoidal rule. This is the formula of composite trapezoidal rule. ठीक है, जो कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में इसके ऊपर प्रॉब्लम भी सॉल्व किया था, और होमवर्क भी आप लोगों के लिए देख सकते हैं. अब इसमें सिम्पसन्स में क्या होगा, इसमें जो हम लोगों ने यहाँ पे n इक्वल्स टू 1 लिया था इन दिस क्वाड्रेचर फॉर्मूला, हमें सिंपली n इक्वल्स टू 2 लेना है, n इक्वल्स टू 2 लेना है, और सिंपल सेम प्रोसेस को फॉलो करना है, और करने से यू विल गेट द कंपोजिट फॉर्मूला ऑफ सिम्पसन्स 1/3. मैं एक बार 2 पॉइंट्स में एक बार बता देता हूँ. सो x0 to x2 है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा x0 to x1, x1 to x2, क्योंकि इफ आई पुट n इक्वल्स टू 2 आई विल गेट 3 पॉइंट्स इन दैट जनरलाइज्ड क्वाड्रेचर फॉर्मूला, दैट इज x0 x1 x2. तो ये करने से आई विल गेट h by 3. थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो यू विल गेट सेम प्रोसीड्यूर है, बिल्कुल सेम प्रोसीड्यूर है. आप लोग देख सकते हैं, खुद से जरूर ट्राई करना और इसका प्रूव करके जाना. लाइक ऐसा आ जाएगा कि डिराइव द फॉर्मूला ऑफ ट्रापेजॉइडल रूल, डिराइव द फॉर्मूला ऑफ सिम्पसन्स 1/3 रूल, सो वी हैव टू डू इन दिस वे ओनली. ठीक है, कोई भी बुक है आप लोगों के पास, थोड़ा सा उससे फॉलो कर सकते हैं डेफिनेटली. तो ये मिल गया आप लोगों को. अब इसको फिर से इसको कंटिन्यू करना है ना, x2 से, फिर x2 से x4 तक, देन ऐसे करके xn-2 से xn तक इसको करना है, फिर ऐड कर देना है. एंड इफ यू ऐड ऑल दिस थिंग्स सो यू विल गेट, मैं एकदम जो डायरेक्ट मिलेगा मैं वही लिख रहा हूँ, लाइक फॉर सिम्पसन्स 1/3, कंपोजिट सिम्पसन्स 1/3. ओके, मैं ऐसे लिख देता हूँ, जो कि हम लोगों को क्वेश्चन में भी यूज करना है, कंपोजिट सिम्पसन्स 1/3 रूल. और इसका जो फॉर्मूला है, द फॉर्मूला गोज लाइक दिस, a2b fx dx is equals to 2h by 3 into h by 3 y0 plus yn. अच्छा, अब क्या करना है, ऑड जो है मतलब y1 y2 y3 अप टू yn-1, इनके साथ 4 मल्टीप्लाई होगा, एंड जो इवन जो है उनके साथ 2 मल्टीप्लाई होगा, दैट इज y2 y4 y6 अप टू yn-2. तो ये बन गया आप लोगों का composite Simpson's 1/3 rule का फॉर्मूला. दैट दिस फॉर्मूला वी हैव टू यूज इन क्वेश्चंस, राइट. ठीक, ओके. तो अब क्वेश्चन क्या एक बार देखते हैं. अच्छा, जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में बता देता हूँ. वैसे जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन आई हैव ऑलरेडी डिस्कस इन ट्रापेजॉइडल रूल, बिल्कुल सेम कंसेप्ट है, मैं फिर भी एक बार बता देता हूँ. यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन आई हैव पिक फ्रॉम 2017 क्वेश्चन पेपर, और एक होमवर्क भी आप लोगों के लिए, ये वाला नहीं, हम लोग ना ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और दिस 2017 इज फॉर होमवर्क, दिस इज फॉर योर होमवर्क. वैसे सेम ही क्वेश्चन है, हाँ सेम ही क्वेश्चन है. अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है, मैं होमवर्क के लिए कुछ और दे देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं. ओके, नाउ द पॉइंट इज की द जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन. ओके, तो अब इसमें क्या होता है कि इन सिम्पसन्स 1/3 बिल्कुल सेम है, क्योंकि इंटीग्रेशन का, डेफिनेट इंटीग्रल का कंसेप्ट ही यही है कि वी हैव टू इंटीग्रेट एनी फंक्शन इन बिटवीन सम इंटरवल. तो उसको हम लोग ऐसे टुकड़ों में डिवाइड करते हैं एंड देन उसको ऐड कर देते हैं. तो सेम ही कंसेप्ट है. तो मान लीजिए कि दिस इज द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, राइट, एंड मान लीजिए कि दिस इज योर एनी कर्व y इक्वल्स टू fx, है ना, एंड इन बिटवीन सम इंटरवल वी हैव टू इंटीग्रेट इट. तो मान लीजिए दिस इज योर, दिस पॉइंट इज x0, दिस पॉइंट इज x2, और क्योंकि मैंने बताया सिम्पसन्स 1/3 में लाइक 3 पॉइंट्स होगा ना, तो बीच में एक और हमें इंटरवल मिल जाएगा, दैट इज x1. ठीक है, तो एंड सिम्पसन्स 1/3 में हम लोग जो अप्रॉक्सीमेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ पैराबोला,
विद द हेल्प ऑफ अ पैराबोला, जो कि इन तीनों पॉइंट से पास करें, मतलब तीनों पॉइंट्स मतलब दिस थ्री पॉइंट्स जो मैं मार्क कर रहा हूँ, पासिंग थ्रू दिस थ्री पॉइंट्स, इन तीनों पॉइंट से पास करने वाला कोई एक पैराबोला से वी अप्रोक्सीमेट द एरिया, मतलब we used a parabola to find the approximated area of this shaded region in the Simpson's one-third rule, और trapezoidal rule में we use straight line, okay, to approximate. ये जो है ना, this is a parabola. So in Simpson's one-third we use parabola to approximate, okay. तो concept क्या है? concept यही है कि यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे ये जो है ना, ये दिस इज द डेफिनेट इंटीग्रल दैट वी वांट टू कैलकुलेट, और इसका जो जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है दैट इज दिस थिंग राइट हैंड साइड, ये RHS में जो चीज़ है दिस इज बेसिकली द एरिया दैट इज द शेडेड ऑफ द शेडेड रीजन अंडर द पैराबोला दैट वी हैव ड्रॉन हियर पासिंग थ्रू ऑल दिस पॉइंट्स, और कुछ इस तरीके से होगा, सिंपल, और कुछ नहीं, ठीक है। यही लिखना है आप लोगों को, थोड़ा बहुत कोई भी बुक में मिल जाएगा। जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख सकते हैं कि रिपीटेटिव ईयर में आ चुका है ना, 2008, 14, 13, 15 में जो डिस्क्राइब द जियोमेट्रिकल सिग्निफिकेंस इंटरप्रिटेशन ऑफ सिम्पसन्स वन-थर्ड, तो जरूर पढ़ के जाना, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये हो गया। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो विल सॉल्व दिस वन। वी हैव टू कंप्यूट द वैल्यू ऑफ पाई फ्रॉम द फॉर्मूला दिस बाय यूजिंग सिम्पसन्स वन-थर्ड, 10 इन सब इंटरवल्स है, तो हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे बाय यूजिंग सिम्पसन्स वन-थर्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, राइट। ओके, सो क्वेश्चन क्या है, 0 to 1 1/x square dx, okay, and intervals मतलब in number of solvent intervals given as 10, okay, ओके। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हाँ चलिए, fx ले लेते हैं फंक्शन जो कि हमको इंटीग्रेट करना है, दैट इज 1/1 + x², ठीक है। a क्या है, a इज द लोअर लिमिट 0 है ना, एंड b क्या है, b इज द अपर लिमिट 1, ये रहा। अच्छा, इंटरवल्स, नंबर ऑफ इंटरवल्स 10 गिवन इन द क्वेश्चन, तो हम लोग h कैलकुलेट कर लेंगे। h का फॉर्मूला इज b - a/n, दैट इज 1 - 0/10, दैट इज 0.1। तो अब क्या करना है, वी हैव टू मेक अ टेबल लाइक दिस, जिसमें हम लोग x लिखेंगे और उनका कॉरेस्पॉन्डिंग fx लिखेंगे, और दिस विल डू बाय यूजिंग द कैलकुलेटर। और इसका टेक्निक मेरा ऑलरेडी मेरा वीडियो बना हुआ है कैलकुलेटर टेक्निक के ऊपर, जो रिसेंट मैंने बनाया है, लिंक जो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, लेकिन ज़रूर देखना, क्योंकि ये सिर्फ और इस मेथड में नहीं, बहुत सारे मेथड्स में यूज़ होने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग लिख लेना x, यहाँ पे fx, ऐसे टेबल बना लेना। तो स्टार्ट होगा 0 से x का वैल्यू है ना, 1 0 तो 0 ही है, ये रहा फर्स्ट इनिशियल वैल्यू, फिर इंक्रीमेंट है 0.1, तो 0.1 करके इन लोगों का इंक्रीमेंट होगा, सॉरी 0.1, फिर 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 एंड 0.9 एंड द लास्ट वैल्यू दैट इज 1। हमें 1 तक जाना है क्योंकि अपर लिमिट 1 है, ओके। अब यहाँ पे फंक्शनल वैल्यू हमें लिख लेना है, तो कैसे लिखेंगे, बाय यूजिंग कैलकुलेटर, ठीक है। कैलकुलेटर ऑन करना, ऑन करने के बाद पहले आप लोग जो है ना, फर्स्ट जो वैल्यू है 0 वो स्टोर कर लेना है हमें, तो हम लोग 0 को स्टोर कर लेंगे। मैंने 0 सिंपली यहाँ पे लिखा है, फिर मैं इसको स्टोर करूँगा ऐसे शिफ्ट RCL, ये स्टोरिंग मोड में जा चुका है, अभी दिख रहा है कि नहीं है पता नहीं, हाँ अभी मैं यहाँ पे सिर्फ ये जो x वाला बटन वो प्रेस कर दूंगा, तो ये मुझे 0 जो है x पे स्टोर हो चुका है, राइट। अच्छा, अब मैं ये इक्वेशन लिख लूंगा, ठीक है, मतलब ये फंक्शन 1/1 + x², सो आई राइट लाइक दिस, 1 डिवाइडेड बाय साइन दूंगा, फिर उसके बाद फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर 1 + अल्फा x वाला बटन, फिर स्क्वायर वाला बटन। तो ये मैंने क्या किया, आप लोग देख सकते हैं, आई हैव रिटन द गिवन फंक्शन, मैंने जो फंक्शन है वो लिख लिया यहाँ पे कैलकुलेटर में। अब मैं जैसे ही इक्वल्स टू प्रेस करूंगा, आई विल गेट द वैल्यू एज 1 एंड दिस वैल्यू इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू x = 0, और ये वैल्यू जो मुझे है यहाँ पे लिख लेना है लाइक दिस, आई विल राइट हियर 1। अब मुझे 0.1 के लिए वैल्यू फाइंड करना है। 0.1 के लिए मैंने क्या करूंगा, पहले मैं यहाँ पे 0.1 को आई विल स्टोर एट x, 0.1 मैंने लिख लिया है। नाउ शिफ्ट RCL, इसको मैं x पे स्टोर कर लूंगा, आई हैव स्टोर दिस वैल्यू एट x। अब मुझे सिंपली ये जो सर्कल है जहाँ पे अप और डाउन और लेफ्ट एंड राइट एरो कीज है, ये अप वाला की एक बार प्रेस करना है, तो स्क्रीन में आप लोग का जो इक्वेशन है वो आ जाएगा। सिंपली जैसे इक्वेशन आ जाएगा, आपको इक्वल्स टू साइन प्रेस कर देना है, करते ही यू विल गेट द वैल्यू एज 0.990, दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, हाँ दिख रहा होगा, 0.99099 एटसेट्रा। दिस इज द वैल्यू ऑफ y एट x = 0.1, एंड आपको ये यहाँ पे लिख लेना है, दैट इज जितना ज़्यादा हो सके उतना मतलब उतना ज़्यादा तक, मतलब ज़्यादा दूर तक जो है वैल्यू को लिखिए, दैट इज जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा डेसिमल के बाद पॉइंट्स को लिखिए, 90099 0 एटसेट्रा। सिमिलरली सेम तरीका आप लोगों को फॉलो करना है, 0.2 को x पे स्टोर करना, आपकी प्रेस करना, इक्वेशन आ जाएगा, फिर उसको लिख लेना। ये कुछ इस तरीके से आप लोगों को वैल्यू जो मिल जाएगा, दैट इज 0.96153 समथिंग लाइक दिस, ओके। फिर इसके बाद ये वाला वैल्यू आप लोग को मिल जाएगा कुछ इस तरीके से, 0.917
431 ओके। फिर इसके बाद 0.862 068 etc. At 0.5 we'll get exactly 0.8 ठीक है। 0.735 2941 etc. After that you will get 0.671 1409 etc. At 0.8 you will get 0.6097560 etc. And at 0.9 you will get 0.552486 etc. and 1 you will get 0.5. बस रेडी है आप सब, आपका टेबल रेडी है। नाउ यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ composite Simpson's 1/3 rule ओके। तो यूज करने से यू विल गेट 0 to 1 है ना, 1/1 plus x square dx is equals to, you will get according to the formula you will get, बाहर क्या मिल जाएगा आपको h/3 है ना, वैल्यूज हम बाद में पुट करेंगे, पहले जनरल फॉर्म लिख लेते हैं। y0 प्लस y10 है ना, yn था प्लस मैंने क्या बताया था 2 into होगा जो भी ऑड टर्म्स है दैट इज y1 y3 2 into था ना 4 into था, एक सेकेंड 4 into होगा राइट। 4 into ऑड टर्म्स है ठीक, 4 into ऑड टर्म्स होगा y5 y7 अप टू y9 राइट, क्योंकि y10 तो लास्ट है, और 2 into इवन जो है वो होगा दैट इज y2 y4 y6 y8 सिंपल। और ये सब वैल्यूज आप लोगों को पता है ना, दिस इज योर y0, दिस इज योर y1, दिस वैल्यू इज y2, दिस वैल्यू इज y3, दिस वैल्यू इज y4 एंड सो ऑन। तो आपको सिंपली यहाँ पे सभी वैल्यूज पुट कर देना है एंड इफ यू पुट ऑल द वैल्यूज यू विल गेट द वैल्यू एज 0.7854 समथिंग लाइक दिस यू विल गेट। ठीक है, जरूर एक बार खुद से करके वेरीफाई कर लेना इसको। ठीक है, यू विल गेट समथिंग लाइक दिस। यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, हमें क्या गिवन था, हमें गिवन था कि दिस इक्वल्स टू π/4 गिवन था। ठीक है, दिस इक्वल्स टू 0 to 1 1/x² dx दिस इक्वल्स टू π/4 गिवन था। और अगर यहाँ पे π/4 नहीं भी दिया हुआ होता तो हम लोग क्या करते, इसको पहले सिंपली इंटीग्रेट कर लेते। 1/1 + x² का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स ऑफ x। ठीक है, बिटवीन 0 to 1 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब ये क्या हो जाएगा π/4 - 0, तो इसका जो आंसर आ रहा है वो π/4 ही आ रहा है। ठीक है, ओके। तो देयरफॉर वी हैव गॉट कि देयरफॉर वी कैन कंपेयर लाइक दिस वैल्यू वी हैव गॉट फ्रॉम अप्रोक्सीमेशन और दिस वैल्यू इज द एग्जैक्ट वैल्यू वी आर गेटिंग फ्रॉम द क्या बोलते हैं, फ्रॉम द इंटीग्रेशन, लाइक नॉर्मली इंटीग्रेशन करके वी आर गेटिंग दिस। सो वी कैन राइट लाइक दिस कि π/4 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 0.7854। सो नाउ वी कैन राइट पाई इक्वल्स टू 4 को उस साइड हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे एंड इफ यू डू सो into 4 जैसे ही होगा इसके साथ, so we'll get an approximated value as 3.1416. I'm writing up to 4 decimal place, okay, up to 4 decimal place you will get this. So यहीं पे होता है खत्म हम लोग का सॉल्यूशन। और बिल्कुल इसी तरीके से आप लोगों को करना है। लाइक जो है आप लोग नहीं करते तो कर देना प्लीज़, और सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर देना, और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर देना ताकि एग्ज़ाम के पहले सभी का हेल्प हो जाए। सो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।